Hello students, now I am going to continue with the chapter ratio and proportion of 9th standard. Today we are going to see one more interesting concept, that is operations on equal ratios. So these are the some 5 important concepts. So the first one, that is invert endo. Just you have to keep in mind the names. Invert endo. So what is the meaning of invert endo? If you are given two equal ratios, that is AB, that is A upon B is equals to C upon D. अगर आपको ये दो इक्वल रेशियोज दिए गए हैं, दैट इज A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D, देन अगर हम इसका इन्वर्स लेते हैं, दैट इज B अपॉन E, तो हम इसका भी इन्वर्स लेते हैं, दैट इज D अपॉन C, और वो दोनों इन्वर्स भी इक्वल रहते हैं, दैट इज B अपॉन A इज इक्वल्स टू D अपॉन C. मतलब ये दोनों अगर इक्वल रेशियोज है तो उनके इन्वर्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, दैट इज B अपॉन A इज इक्वल्स टू D अपॉन C. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द इन्वर्ट एंडो. Now see the next property, that is alternando. So what is the meaning of alternando? Again the same. This concept is same for each ratio. That is अगर two ratios equal है, if A upon B is equals to C upon D, then so observe that what I do here. Just I am taking the ratio of numerators. See here, A C. So A upon C. We have to write down this first. A upon C. And यहाँ पे B upon D. इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, A अपॉन सी एंड यहाँ पे B अपॉन डी. तो न्यूमरेटर का हमने रेशियो लिया अपॉन डिनोमिनेटर का रेशियो लिया, तो ये दोनों भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. इफ द टू रेशियोज आर इक्वल, देन A अपॉन सी इज इक्वल्स टू B अपॉन डी. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द अल्टरनेंडो. नेक्स्ट वन इज द कॉम्पोनेंडो. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोनेंडो? इफ द टू रेशियोज आर इक्वल, सेम ये जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज इफ़ टू रेशियोज आर इक्वल, ये सब प्रॉपर्टी के लिए सेम है. मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ही सिर्फ टू इक्वल रेशियोज के लिए ही है. सो A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या किया है, वी टेक द एडिशन ऑफ दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज एज इट इज. A प्लस B अपॉन B, जो हम लेफ्ट साइड को करते हैं वही हम राइट साइड को भी करते हैं, दैट इज C प्लस D अपॉन D. So this property is called as the componendo. I repeat, A upon B is equals to C upon D, then A plus B upon B is equals to C plus D upon D. The next property is dividendo. Again same, that is if the two ratios are equal, that is A upon B is equals to C upon D, then A minus B upon B. यहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करें. Only the difference is the sign. A minus B upon B is equals to C minus D upon D. ये both the properties are same. यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करते हैं. So if the two ratios are equal, if we take the addition, that is A plus B upon B, then it is componendo. And if we take the subtraction, A minus B upon B is equals to C minus D upon D, then it is dividendo. And the last property is the combination of these two. The property's name is also componendo dividendo. तो कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं न्यूमरेटर में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन. सो A अपॉन B इज इक्वल्स टू C अपॉन D, देन A प्लस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल्स टू C प्लस D अपॉन C माइनस D. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियोज. फर्स्ट, दैट इज इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, componendo, dividendo and componendo dividendo. I repeat it again. In invertendo, if two ratios are equal, then their inverse ratios, we take the inverse of this one. So B upon A is equals to D upon C. Next one, that is alternando, that is if the two ratios are equal, then A upon C is equals to B upon D. Then componendo, if two ratios are equal, then A plus B upon B is equals to C plus D upon D. Dividendo, if two ratios are equal, then A minus B upon B is equals to C minus D upon D. And in componendo dividendo, if the two ratios are equal, then A plus B componendo, so we take addition in the numerator, and dividendo, so we take subtraction in the denominator. जो हम लेफ्ट साइड को कर रहे हैं वही हम सेम राइट साइड को भी करते हैं. A plus B upon A minus B is equals to C plus D upon C minus D. So these are the very important 5 properties of the equal ratios. And the next exercise, that is practice set 4.3, is related to these properties. So see the question. If A upon B is equals to, this is the equal to sign,
7/3. So what is the meaning of this one? That is two ratios are equal. A upon B is equals to C upon D. ये दो ratios यहाँ पे equal है. Then find the values of the following ratios. So we have to find out the answer of these 4 examples. So see the first example, 5a plus 3b upon 5a minus 3b. Just I am going to tell you यहाँ पे मैं एक interesting thing आपको बताने वाली हूँ. आप अगर थोड़ा सा ये एग्जाम्पल माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अरे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो. यस, अगर हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाते तो ये हमें रेशो कैसे दिखाई देता? दैट इज़ 5a अपॉन 3b. यस, इज इट करेक्ट? 5a अपॉन 3b. जब हमें इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तब तो हमें क्या मिलेगा? 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b मिलेगा. ठीक है. यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा हम स्क्वायर को बाजू में रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? दैट इज़ कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाते तो रेशो हमें कैसे दिखाई देता? तो ये रेशो हमें दिखाई देगा दैट इज़ 2a अपॉन 3b. जस्ट सी द नंबर्स. ये कैसे दिखाई देगा? स्क्वायर हम बाद में देखेंगे. जस्ट सी द रेशो दैट इज़ 2a अपॉन 3b. यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पे 1 है तो ये रेशो कैसे होगा? दैट इज़ a अपॉन b होगा. 1 यहाँ पे है. सेम यहाँ पर भी 7a प्लस 9b. तो ये रेशो हमें कैसे दिखाई देगा? दैट इज़ 7a अपॉन 9b. ठीक है. तो कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं. जो हमें दिया है दैट इज़ a अपॉन b इज इक्वल्स टू 7/3. सो वी गोइंग टू राइट इट फर्स्ट. दैट इज़ गिवन. तो ये a अपॉन b एंड 7/3 हम वैसे ही रखेंगे. तो ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है. तो ये रेशो हमें कैसे दिखाई देता अगर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे नहीं लगता? तो मैंने अभी बताया था आपको 5a अपॉन 3b जैसा हम लिखता. तो हम सिर्फ ये नंबर देखेंगे 5 अपॉन 3. तो ये जो नंबर है उस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर भी मैंने 5 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई किया. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5/3. कुछ नहीं किया, ये जो है वो वैसे ही है और इसको मैंने ये दोनों को मैंने सिर्फ 5/3 से मल्टीप्लाई किया. 5/3 कहाँ से आया? इस एग्जाम्पल से आया. सो 5 अपॉन 3 से आया. नाउ व्हाट वी गेट हियर? सो 5a न्यूमरेटर का हमने प्रोडक्ट लिया, डिनोमिनेटर का भी लिया. 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर कोई कैंसिल होता है तो कर लो, नहीं हो रहा है. 7 इंटू 5 दैट इज़ 35 अपॉन 9. अभी ये रेशो हमें मिला है. अभी इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है. तो ये मिलने के लिए हमें यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? दैट इज़ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो अगर हम इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंपोनेंडो डिविडेंडो इस दोनों का एडिशन हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और उन्हें दोनों का सब्सट्रैक्शन हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं. तो 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो किया सेम वो हम यहाँ पर भी करेंगे. 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9. तो यहाँ पे हमें मिला 44 अपॉन 26. आफ्टर रिड्यूसिंग वी गेट 22 अपॉन 13. सो दिस इज द आंसर. मतलब हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट किया 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b का. अभी हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो पहले हमें जो दो इक्वल रेशोज दिए वो हम लिखेंगे. a अपॉन b इज इक्वल्स टू 7/3. अभी इस एग्जाम्पल में हमें दिखाई दे रहा है कि अरे यहाँ पे तो a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है. तो स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. तो हमें दोनों का स्क्वायर कर दिया तो हमें मिल गए यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हमें मिला 49 अपॉन 3 का स्क्वायर मिला हमें 9. तो अभी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हमें मिल गया. तो यहाँ के नंबर्स हम देखते हैं. यहाँ पे नंबर क्या है? 2 अपॉन 3. सो ये 2 अपॉन 3 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 9 इंटू 2/3. सो मल्टीप्लाई करने से हमें मिला 2a स्क्वायर, यहाँ पे मिला 3b स्क्वायर. 49 2 ज़ा 98 एंड 9 इंटू 3 दैट इज़ 27. तो अभी हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए. और इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है? अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो ये हमें मिलने के लिए हमारा जो आंसर यहाँ तक आया था उसको हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे? बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का एडिशन न्यूमरेटर में लिखेंगे और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर.
यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी लगाई वही हम राइट साइड को भी लगाएंगे। 98 + 27 अपॉन 98 - 27, तो यहाँ पे हमें मिला 125 अपॉन 71। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रेशियो, दैट इज 2a² + 3b² अपॉन 2a² - 3b²। जो वैल्यू हमें पूछी गई थी उसका आंसर हमने निकाला। अभी हमें इसका वैल्यू निकालना है, a³ - b³ अपॉन b³। तो स्टार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमें रेशियो दिया है वो हम उसको लेके यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज a अपॉन b = 7/3, इट इज़ गिवन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a³ अपॉन b³ = 7³ अपॉन 3³ = 343 अपॉन 27। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है तो ये है डिविडेंडो। सब्सट्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, डिविडेंडो। अभी मैंने आपको बताया दैट इज डिविडेंडो मतलब सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाय डिविडेंडो। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं, a³ - b³ अपॉन b³। वही हम इसको भी करेंगे, 343 - 27 अपॉन 27। सो a³ - b³ अपॉन b³ का आंसर मुझे मिला 316 अपॉन 27, दैट इज 316 = 27। Now we are going to find out the last one, that is 7a + 9b अपॉन 7a - 9b। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वल रेशियोज दिए हैं वो लिखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अपॉन 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये गिवन है, इसके दोनों साइड के लिए हम 7/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7/9 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं। So we get 7a upon 9b = 7 7s are 49/27। अभी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इस चीज़ की निकालनी है। यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सो वी गोइंग टू यूज हियर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। सो बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वी गेट 7a + 9b अपॉन 7a - 9b = 49 + 27 अपॉन 49 - 27। So 7a + 9b upon 7a - 9b = 76 upon 22. So after reducing we get here 38 upon 11. That is the answer of the given example, that is 38:11. So this is all about the example number 1 of exercise 4.3 and उसी टाइप के सब एग्जाम्पल्स इसमें हैं। The next example we will see in the next lecture. Thank you.